An atom consists of a positively charged, dense and very small nucleus, positively charged, dense and very small nucleus containing all the protons and very small nucleus containing all the protons and neutrons, containing all the protons and neutrons, full stop. Almost the entire mass of an atom almost the entire mass of an atom is concentrated in the nucleus. Is concentrated in the nucleus. Is concentrated in the nucleus. Second point note करेंगे. The nucleus is surrounded by negatively charged electrons. The nucleus is surrounded by negatively charged electrons. The nucleus is surrounded by negatively charged electrons. Full stop. The electrons are revolving around the nucleus. The electrons are revolving around the nucleus in circular paths at very high speeds. In circular paths at very high speeds. Full stop. The circular paths of the electrons the circular paths of the electrons are called orbits. Third, the electrostatic attraction between the positively charged nucleus
the electrostatic attraction between the positively charged nucleus and negatively charged electrons positively charged nucleus and negatively charged the electrostatic attraction between the positively charged nucleus and negatively charged electrons holds the atom together. Holds the atom together. Holds the atom together. Fourth है, an atom is electrically neutral. An atom is electrically neutral. Full stop. This is because the number of protons and electrons in an atom this is because the number of protons and electrons in an atom, the number of protons and electrons in an atom is equal. Fifth point है, most of the atom is empty space. Most of the atom is empty space. Most of the atom is empty space. रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम, तो रदरफोर्ड ने क्या बताया कि एटम का मॉडल कैसा है, एटम किस तरीके का दिखता है, ये रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन करा। और किस तरह से एक्सप्लेन करा, देखिए फर्स्ट पॉइंट उसने ये बताया, एन एटम कंसिस्ट ऑफ a positively charged dense and very small nucleus containing all the protons and neutrons. Almost the entire mass of an atom is concentrated in the nucleus. तो उसने ये बोला रदरफोर्ड ने कि एक जो एटम है उस एटम में क्या हो गया, कोई कंपटीशन है क्या? टक टक टक। ये आवाज किस वजह से आती है पता है? उंगलियां चटकाते हैं आप लोग, ये आवाज किस वजह से आती है पता है क्या? एयर बबल्स होते हैं, ये जो जॉइंट्स होते हैं ना, इसके बोन्स के जो जॉइंट्स हैं वहां पर बीच में एयर बबल्स होते हैं, और आप उसको प्रेस करते हो तो वो बबल एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। हमें बड़ा अच्छा इतनी जोर से हमें बड़ा अच्छा लगता है वो करके। कुछ तो हम जब पढ़ा करते थे, कुछ बच्चे तो ऐसे थे, ऐसे ऐसे करते थे, गर्दन में से आवाज आती थी। चलिए, an atom consists of a positively charged dense and very small nucleus containing all the protons and neutrons. Almost all the entire mass of an atom is concentrated in the nucleus. तो हम ये कहते हैं कि रदरफोर्ड ने ये बताया कि एटम जो है, एटम के सेंटर में एक बहुत डेंस मतलब बड़ा घना और साइज में बहुत छोटा होता है। वो तो पता ही है, एटम वैसे ही अपने आप में बहुत छोटा है, तो न्यूक्लियस बहुत बड़ा तो होगा नहीं, क्योंकि एटम के अंदर ही होता है वो। तो उसके अंदर सारे के सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और वो एटम के सेंटर में होता है। पहली चीज तो रदरफोर्ड ने ये बताई। दूसरी चीज जो अब तक किसी ने नहीं बताई थी, वो रदरफोर्ड ने बताई, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स एट वेरी हाई स्पीड्स। द सर्कुलर पाथ्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। ठीक, तो
वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में, जिनको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं, वो उसमें रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, तो पहली बार ये चीज रदरफोर्ड ने ही बताई, थॉमसन ने भी नहीं बताई थी। थॉमसन ने क्या कहा था कि एटम जो है, एटम एक बहुत बड़ा मतलब एटम जो है वो एक बॉल की तरह है, स्फेरिकल बॉल की तरह, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एम्बेडेड है। एम्बेडेड है मतलब जैसे पिन लगा देते हैं, तो ऐसे पिन की तरह उनको लगा रखा है। रदरफोर्ड ने बताया कि वो रिवॉल्व करते हैं। ये थ्योरी आज भी मानी जाती है। ये जो सेकंड वाला पॉइंट है। थर्ड पर आइए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होल्ड्स द एटम टुगेदर। तो ये बताया गया कि जैसे मान लीजिए ये सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भरे हुए हैं। फिर ये पहला ऑर्बिट है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर ये दूसरा ऑर्बिट है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ऐसे इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कैसा होगा, जैसे कि ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। हम ये कहेंगे नहीं नहीं, नेगेटिव भी तो पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचता है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो बात ये है कि ये जो पॉजिटिव है ना, इसमें सारे के सारे सारे के सारे जो प्रोटॉन्स हैं वो एक जगह इकट्ठे हैं। तो यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, समझ रहे हैं। तो यूनिटी में कुछ ज्यादा ही ताकत है। तो सारे के सारे प्रोटॉन्स यहाँ पर हैं, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज थोड़ा ज्यादा है न्यूक्लियस में, और ये इलेक्ट्रॉन्स तो भटक रहे हैं, ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं। ठीक, तो अगर ये न्यूक्लियस ना होता तो ये इलेक्ट्रॉन कोई इधर कोई उधर ऐसे घूम रहे होते। तो क्या है कि जैसे ये कहा जाता है ग्रेविटी में, जैसे हमने पढ़ा था कि जो सन है, सन एक ग्रेविटेशनल पुल लगाता है, जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके उनको अपनी तरफ खींचता है सन। तो वो जो ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसी की वजह से जितने भी प्लैनेट्स हैं वो चारों सारे के सारे रिवॉल्व करते रहते हैं प्रॉपर अपने अपने ऑर्बिट्स में। नहीं तो कोई स्पेस में कहीं चला जाएगा, कोई स्पेस में कहीं चला जाएगा। ठीक है, तो वही कहानी यहाँ पर है कि ये जो न्यूक्लियस है, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। तो इसमें क्या है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसकी वजह से न्यूक्लियस ही सारे इलेक्ट्रॉन्स को रोक कर रखता है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर घूमने लगेंगे। ठीक है, फोर्थ देखिए, एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है भाई, जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर एक प्रोटॉन पर चार्ज जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन है उस पर भी इतना ही होता है, बस साइन उसका नेगेटिव होता है। तो अगर हम सारे चार्जेस का सम करें, मान लो 10 प्रोटॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 ऐसे करते करते 10 चार्जेस, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव 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 ऐसे करते करते 10 नेगेटिव चार्जेस। अगर इनको हम देखें तो तो अगर इसका चार्ज +1 है तो इसका -1 होगा, इसका +1 तो इसका -1। अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। उसके बाद फिफ्थ है, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में भी हमने देखा था कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, दे मूव ऑन अनडिफ्लेक्टेड, उनमें किसी तरीके का कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं होता। तो इसका मतलब एटम का ज्यादातर जो स्पेस है वो क्या है, खाली है। ठीक, तो ये 5 उसने अपने मॉडल बताए एटम के, कि एटम जो है वो कुछ इस तरीके का होता है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद नोट करेंगे, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम।
ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। किसी भी चीज में कोई ड्रॉबैक होते हैं, कुछ कमियां होते हैं, तभी तो कोई नई चीज आती है। ओ, कोटा फैक्ट्री सीजन 2 आया था, देखा? 1 भी देखा, 1 और 2 दोनों देखे। उसमें Yes. जीतू भैया ने कौन कौन से कलर के कपड़े पहने थे? क्या? अरे कुछ तो याद होगा। हाँ, वाइट और Blue shirt. ब्लू शर्ट पहनी थी। और बताओ बताओ, कलर्स बता दो। नहीं देखा किसी ने? अरे स्टूडेंट्स को तो देखना चाहिए। चलो खैर छोड़ो, छोड़िए। तो ये वैसे ही अंदाजा लगा रहे हो कि ब्लू, कोई कलर वलर था ही नहीं उसमें। उसमें क्या था कि व्हाइट और ब्लैक ही Black and कलर था। white. ठीक है ना, वो ब्लैक एंड व्हाइट वेब सीरीज थी, उसमें कुछ भी कलर्स थे ही नहीं। तो पहले क्या हुआ कि सबसे पहले जब टीवी था, टेलीविजन था, तो टेलीविजन का जब इन्वेंशन हुआ तो उसमें क्या हुआ कि उसमें ये देखा गया, सबने ये देखा कि भाई अब तो ये जितनी भी फिल्में बन रही हैं उसमें मतलब वो अलग अलग रंगों के हीरोइन जो है वो साड़ियां पहन रही हैं, हीरो जो है अलग अलग कपड़ों के पैंट शर्ट पहन रहे हैं अलग अलग रंगों के। फिर ये देखा कि ये कोई फायदा तो है नहीं। तो पुरानी फिल्में आप देखेंगे तो ज्यादातर में क्या होगा, ब्लैक शर्ट वो व्हाइट शर्ट होगी, ब्लैक पैंट होगी, या ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट ही होगी, है ना? तो इस तरीके से ही कपड़े जो हैं, कपड़ों की ज्यादा चॉइस नहीं हुआ करती थी। ये मैं बताऊँ 1970 से पहले की जो फिल्म आती थी, यूट्यूब पर भी डालकर देख सकते हैं, देख लेना। तो उसमें खास तौर पर कोई मतलब खास ओकेजन है तो व्हाइट कुर्ता पजामा पहन लिया। क्यों? क्योंकि हमें बस दिखना ही ब्लैक और व्हाइट में, और कुछ है ही नहीं। तो धीरे धीरे जब कलर्स आए, तो ये किस वजह से आए कलर्स, कि भाई हम लोग तो आपस में एक दूसरे को इस तरह से देख पा रहे हैं, लेकिन हम उस चीज को पिक्चर में पोर्ट्रे नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो फिर पिक्चर, ये कैमरा, ये सब भी इस तरीके के आने लगे। पहले कैमरा भी ब्लैक एंड व्हाइट ही आते थे। वही चीज फिर रदरफोर्ड के जो मॉडल था इसमें हुआ कि जैसे हम मान लीजिए कोई भी एक चीज पढ़ते हैं, तो उस चीज को जब हम पढ़ते हैं तब हमको ना किसी तरीके की प्रॉब्लम लगने लगती है। फॉर एग्जाम्पल आज तक भी ऐसे ही लगता होगा आपको कि हम ये सब कुछ पढ़ाई कर क्यों रहे हैं, इसका यूज क्या है। ठीक है, ये रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम हमें पढ़ाया क्यों जा रहा है? मुझे अपनी डेली जो डे टू डे लाइफ है उसमें तो मुझे कहीं इसका कुछ यूज नजर आता नहीं है। धीरे धीरे पता चल जाएगा जब 12th क्लास में आएंगे, फिर इनका एप्लीकेशन नजर आने लगेगा, तो समझ में आएगा कि आपको किसी भी फील्ड में जाना है तो वहां पर इस चीज की जरूरत पड़ेगी। फिर आगे प्रोफेशनल स्टडी में कहीं भी जाएंगे तो वहां पर वो आपसे कहेंगे अच्छा ये तो बचपन में पढ़ा होगा ना, ये तो बचपन में पढ़ा होगा ना, तब लगेगा कि अरे हाँ, इन चीजों का यूज whenever you go and find your own profession, तब आपको ये समझ में आता है कि जो जो चीजें हमने पढ़ी थी उनका कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, इनफैक्ट कई बच्चों को इस चीज से भी प्रॉब्लम है कि हिस्ट्री हमें क्यों पढ़ाई जाती है। ठीक है, ज्योग्राफी हमें क्यों पढ़ाई जाती है, वो इस वजह से पढ़ाई जाती है कि जब भी कभी मान लीजिए आप में से किसी बच्चे ने धीरे धीरे उम्र के साथ साथ जब आप बड़े होते गए तो आपने इंटरेस्ट डेवलप करा कि नहीं मुझे तो फोर्स में जाना है, किसी भी फोर्स में, चाहे फिर वो बीएसएफ हो, चाहे फिर वो आर्मी हो, चाहे फिर वो नेवी हो, एयरफोर्स हो। तो वहां पर अगर किसी को बोल दिया गया कि भाई आपको उस एरिया में जाना है, अब आपने बचपन में ज्योग्राफी ढंग से पढ़ी ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि उस एरिया में किस किस चीजों का खास ध्यान रखना पड़ता है, उस एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है ना? तो आप तो ऐसे ही चल भाई चल वहां जाना है तो चलो ऐसे ही चलते हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमको पढ़ाई से ही पता चलती हैं। ठीक है, हर चीज के लिए गूगल वूगल ये सब काम नहीं आते। तो अब वही चीज है यहाँ पर कि जब किसी चीज का जब तक ड्रॉबैक नहीं पता होता ना, तब तक साइंटिस्ट उस पर आगे कुछ काम करते नहीं है। समझ रहे हैं? जैसे थ्रू आउट द वर्ल्ड एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये चल रही है कि आप देखते हैं कि कभी इराक में झगड़ा है, कभी अमेरिका में झगड़ा है, लड़ाई झगड़े सब चल रहे हैं। ये खास तौर पर गल्फ कंट्रीज के आसपास ही लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? कोई रीजन बता सकता है इसका? ऑयल क्राइसिस, एक ही पंगा है, बस एक ही पंगा है। कोई उसको रिलीजन से जोड़ देता है, कोई किसी चीज से जोड़ देता है, लेकिन पंगा मेन एक ही है कि वहां पर ऑयल रिजर्व्स हैं। ऑयल रिजर्व्स हैं तो अमेरिका को उसमें प्रॉब्लम नजर आती है और उसको अमेरिका में प्रॉब्लम नजर आती है। तो इसी वजह से मेन जो झगड़ा है वो इसी वजह से है। अगर मान लीजिए, अगर मान लो कि हमारा जो कंट्री है, हमारे कंट्री साउथ अफ्रीका का, आपको पता होगा पानी की बहुत बुरे हालत चल रहे हैं, पानी नहीं है पीने का उन लोगों के पास। तो बड़ा वैसा चल रहा है वहां पर मामला। अगर मान लीजिए जो व्हीकल्स है ना, गाड़ियां, स्कूटर, बाइक्स वगैरह, ये अगर पानी से चलने लगे ना, तो अगला हमला इंडिया पर ही हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पानी बहुत है। ठीक है, तो इस वजह से ये सारा जो झगड़ा चलता है ये सब इसी चीज का चलता है। अब इसी वजह से
बहुत सारे कंट्रीज के ये प्रॉब्लम्स हो गई। फोन उठाकर बोल दो भेज दो, बस ये बोल देना। तो इस वजह से अब जो मेजर रिसर्चेस चल रहे हैं वो ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फ्यूल पर ही चल रहे हैं। मिस्टर डॉग से होगा। तो जितना भी है ये सारे के सारे फ्यूल के ऊपर ही सब झगड़े चल रहे हैं। तो उन झगड़े में बस यही है कि ज्यादातर जो रिसर्च है वो इसी चीज पर चल रहे हैं कि हमारा कंट्री भी लगा हुआ है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है उसको, ठीक है। वाटर, एक टोयोटा ने भी एक कार बनाई थी जापान में, हालांकि सक्सेसफुल हुई नहीं। उसमें क्या था, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन बर्निंग एजेंट है, बर्न करता है किसी भी चीज को। अगर ऑक्सीजन ना हो तो हम अपने कोई भी पेट्रोल डीजल कैसे भी व्हीकल हम चला नहीं सकते। तो एक इंजन बनाया गया था, उसमें क्या था कि जो वाटर होता है, वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है, और फिर वो जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं होता, वो उस हाइड्रोजन को बर्न करने लगता है और बर्निंग से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और एनर्जी से व्हीकल चलता है। एक मिनट में, एक मिनट वेट करिएगा, आ रहा हूँ अभी। चलिए, तो हम इस चीज पर आ रहे थे कि ये ड्रॉबैक जो है, अब जैसे ड्रॉबैक की बात करते हैं, जब तक किसी चीज का ड्रॉबैक पता नहीं चलता तब तक उसमें आगे किसी तरीके का कोई इन्वेंशन, कोई डिस्कवरी नहीं होती। तो यहाँ पर ना, जैसे हमने एक चीज देखी कि इलेक्ट्रॉन्स लगातार ना रिवॉल्व कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो एक तो ये नहीं बताया गया कि कितना करेंगे भाई रिवॉल्व, या करते ही रहेंगे हमेशा। तो इस चीज को या तो रदरफोर्ड एक्सप्लेन, मरने से पहले एक्सप्लेन कर देता, वो बेचारा मर गया, बता नहीं पाया उस चीज को। ठीक है, पता होगा शायद, लेकिन बता नहीं पाया। कई बार होता है ना कि कुछ क्वेश्चन किसी ने पूछा ही नहीं तो हमने बताया ही नहीं, तो किसी ने पूछा नहीं तो इन्होंने बताना भी जरूरी नहीं समझा, कि शायद सबको समझ में आ ही गया होगा। तो ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल, तो आगे जो फ्यूचर में और साइंटिस्ट हुए, उन साइंटिस्ट ने काफी क्वेश्चन उठाए। तो एक क्वेश्चन इस चीज का था कि अगर कोई भी चीज लगातार मूव करती जा रही है, करती जा रही है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो चीज स्टेबल है। वो चीज स्टेबल तो नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि उसमें लगातार मूवमेंट है। तो पहला ड्रॉबैक इसका यही था, नोट करेंगे। पहला ड्रॉबैक ये था, अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम, a major drawback of a major drawback of Rutherford's model of the atom a major drawback of Rutherford's model of the atom is that it does not explain the stability, is that
it does not explain the stability, it does not explain the stability of the atom. तो रदरफोर्ड ने ये नहीं बताया कि उसकी स्टेबिलिटी के बारे में कुछ एक्सप्लेन ही नहीं करा कि भाई वो कितना स्टेबल है, वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो क्या करते ही रहेंगे। बस वो इतना कह देता कि जो एटम है वो अनस्टेबल रहता है, कभी स्टेबल होता ही नहीं। ठीक है, तो सबके मुंह बंद हो जाते। क्यों? क्योंकि वो उस चीज को एक्सप्लेन भी कर पाता, क्योंकि उसने जब ये मॉडल ऑफ एटम बताया है तो फिर वो उसको एक्सप्लेन भी कर पाता। पर उसने इस बारे में कुछ बताया ही नहीं, और जब लोगों ने क्वेश्चन उठाया तब तक वो रहा नहीं। तो सेकंड ड्रॉबैक। सेकंड ड्रॉबैक ये है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स, ये मालूम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है ये मालूम है? थोड़ा बहुत आइडिया किसी को भी? अच्छा, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स, घर में किसी के पास मैग्नेटिक कंपास है? कंपास होता है ना जिस पर नॉर्थ और साउथ होता है लिखा हुआ, है किसी के पास? According to electromagnetic theory of physics, comma, if a charged particle undergoes accelerated motion, if a charged particle if a charged particle undergoes if a charged particle undergoes if a charged particle undergoes accelerated motion, then it must radiate energy or lose energy continuously. And it must radiate or lose energy so the electrons ब्रैकेट में लिखिएगा whose velocity the electrons, बल्कि एक मिनट रुक जाए, इलेक्ट्रॉन्स लिखने के बाद ब्रैकेट में लिखिएगा following accelerated motion electrons following accelerated motion will continuously lose energy and finally all their energy gets lost and
then they may get attracted towards nucleus completely, but this is not the scenario which is observed in any atom. So here also Rutherford's model failed. यहाँ पर भी जो रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो यहाँ पर भी फेल हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये होती है कि जैसे मान लीजिए हम अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं। अब मान लो कोई वायर है, जैसे मान लीजिए हमारे मोबाइल फोन का चार्जर है, या आप ये समझ लीजिए कि हमारे लैपटॉप का चार्जिंग केबल है, या यहाँ से जितने भी वायर्स निकल रहे हैं जिनमें भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। तो आप ये देखिए कि अगर आपके पास मैग्नेटिक कंपास है, ठीक है, वो नहीं जो वो ऐप आती है ना मोबाइल फोन में, वो वाला नहीं, जो एक्चुअल में मैग्नेटिक कंपास होता है 10 या 15 रुपए का मिल जाता है किसी भी स्टेशनरी शॉप पर, गोल सा, जिसमें नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन दिखाई देती है। तो उस मैग्नेटिक कंपास को आप रख दो किसी वायर के बराबर में, ठीक है, और ऐसे ही रख दो कि वायर अभी कनेक्टेड नहीं है इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रिक सॉकेट में कनेक्टेड नहीं है। इलेक्ट्रिक सॉकेट में वायर को कनेक्ट करो, कनेक्ट करने के बाद में पास में उसके मैग्नेटिक कंपास रख दो। मैग्नेटिक कंपास को रखा रहने दो स्टेशनरी, मतलब ऐसी शांति से रखा रहने दो, हिलाना मत उसको ज्यादा। तो जब उसकी नीडल फाइनली रुक जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, थोड़ा बहुत वो डिफ्लेक्ट करेगी क्योंकि आपने हिलाया उसको, तो वो थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट करेगी। फिर जब वो रुक जाए तब आप उसका स्विच ऑन करना। तो आप ये देखना कि मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम ये बोलते हैं कि अगर कहीं भी किसी भी वायर में इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, तो उसके आसपास ना कहीं पर कोई ट्रांसफार्मर देखा होगा, वहां ना खोपड़ी बनी रहती है। खोपड़ी समझ रहे हैं? ऐसे वो बना रहता है, उस पर लिखा रहता है कॉशन डेंजर 440 वोल्ट लिखा रहता है। वो इस वजह से लिखा रहता है, भाई सबको पता है यहाँ पर ट्रांसफार्मर है, कोई जाकर उसको पकड़ने वाला तो है नहीं, किसी को मरना थोड़ी है कि भाई इसमें करंट है उसको जाकर पकड़ लें। लेकिन क्या है, आप ये देखिए उसके आसपास भी ना पूरा बड़ा एक जाल बनाया जाता है, एक प्रोटेक्शन बनाई जाती है। उसका रीजन क्या है कि कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है ना, तो उसके आसपास एक जो एरिया होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। उसके आसपास भी अगर कोई लिविंग ह्यूमन बीइंग पहुंच जाए तो उसको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा, और फाइनली डेथ हो सकती है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने ये देखा कि मैग्नेट का गेम हम सबने खेला है कि एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट के आसपास हम दूसरी मैग्नेट लेकर आ गए, तो हम ये देखते हैं कि वो मतलब मैग्नेट उसको ना थोड़ा रिपेल करने लगती है, मतलब दूर को पुश करने लगती है विदाउट टचिंग इट। ऐसा क्यों है? कि मैग्नेट के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है ये क्या कहती है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी है कहीं पर भी तो उसकी वजह से मैग्नेटिज्म है, और अगर मैग्नेटिज्म है कहीं पर भी तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी है। ये हमने कैसे देखा? ये इलेक्ट्रिसिटी थी उस वायर के अंदर जिसके पास हमने मैग्नेटिक कंपास को रखा। मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्शन तब देता है जब उसके आसपास मैग्नेट लाई जाती है, लेकिन वो तो इलेक्ट्रिसिटी से भी डिफ्लेक्शन दे रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं करती, मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप करती है। इसी चीज को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सुना होगा कई बार, हार्मफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मोबाइल फोन्स में होते हैं, लैपटॉप्स में होते हैं, जितनी भी डिवाइसेस हैं जिनमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगे ही होंगे। तो अभी जो हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं या हम यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जो हमारे फोन में आ रही हैं, जिसके थ्रू हम कोई वीडियो या कोई ऑडियो देख या सुन पाते हैं। समझ रहे हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये है ना, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स, इफ अ चार्ज पार्टिकल अंडरगोज एक्सेलरेटेड मोशन देन इट मस्ट रेडिएट और लूज एनर्जी। हम कहते हैं ना कि बहुत देर तक मोबाइल फोन पर बात नहीं करनी, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का मतलब क्या होता है कि एनीथिंग व्हिच इज रेडिएटेड, व्हिच इज बीइंग रेडिएटेड। रेडिएटेड का मतलब व्हिच इज बीइंग लॉस्ट टू द एटमॉस्फेयर।
तो एटमॉस्फेयर में हम आ गए और हमारा दिमाग आ गया, हमारे दिमाग के पास में ही फोन लगा हुआ है, हम लगातार बात करते जा रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो हमारे माइंड की जो छोटी 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 नर्व्स हैं उनको धीरे 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 करके डैमेज करने लगती हैं। तो वो लोग जो बहुत ज्यादा मोबाइल फोन्स पर बात करते हैं, धीरे 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 उनकी जो सुनने की ताकत है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, या फिर उनकी जो मेमोरी पावर है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि वो ब्रेन सेल्स को डैमेज करती है। ठीक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में ये एक्सप्लेन करा गया कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है, वो चार्ज पार्टिकल कुछ ना कुछ एनर्जी रेडिएट करेगा या लूज करेगा। और कब? अगर वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में है। अब हम ये कहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, एक्चुअली रदरफोर्ड ये कहता है न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर वो कांस्टेंट स्पीड से भी रोटेट कर रहे हैं तो भी उनका जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड कहलाएगा। रीजन क्या है? हर इंस्टेंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। समझ रहे हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैंने आपको ये बताया था कि जब भी कोई बॉडी पार्क के चारों तरफ, मान लो हम पार्क के चारों तरफ रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, तो क्या होगा? हम भले ही सेम स्पीड पर जॉगिंग करें, लेकिन हम हर इंस्टेंट पर अपनी डायरेक्शन बदल रहे हैं, क्योंकि हम अगर एक सर्कुलर पार्क के चारों तरफ ऐसे 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 गोल गोल चक्कर काट रहे हैं, तो हम सीधे सीधे तो नहीं दौड़ सकते, हम हल्का सा टिल्टेड जरूर रहेंगे। हम हल्का सा टिल्टेड रहेंगे हर इंस्टेंट पर अपनी डायरेक्शन बदलने के लिए। हम साइकिल भी अगर चलाते हैं तो हम हैंडल सीधा तो नहीं रख सकते, हम हैंडल हल्का सा टिल्टेड रखेंगे, यानी कि हर इंस्टेंट पर हमारी स्पीड भले ही सेम हो लेकिन हमारी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज हो रही है यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, एंड चेंजेस वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहे हैं तो भले ही उनकी स्पीड कांस्टेंट हो लेकिन उनका मोशन एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा। और एक्सेलरेटेड मोशन में इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रेडिएट करते जाएंगे, ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है कि वो एनर्जी रेडिएट करते जाएंगे, लूज करते जाएंगे। जब वो एनर्जी लूज करते ही जाएंगे और कहीं और से उनको एनर्जी मिल नहीं रही है, तो फाइनली उनकी सारी एनर्जी लूज हो जाएगी, सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। और खत्म होने के बाद उनको जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो स्टेबल है, शांत बैठा हुआ है, तो उसके अंदर तो हाई पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि उसने तो अभी तक अपनी पोटेंशियल एनर्जी को यूज ही नहीं करा। ठीक। तो जब वो खत्म हो जाएगी उसकी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। और प्रोटॉन जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर आकर सारे इलेक्ट्रॉन चिपक जाएंगे। अल्टीमेटली रदरफोर्ड की थ्योरी कन्वर्ट हो गई। ये जो सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये कहने लगी, फिर रदरफोर्ड की थ्योरी तो फिर थॉमसन की थ्योरी से मैच कर रही है। थॉमसन ने यही तो कहा था कि न्यूक्लियस है एक स्फेरिकल बॉल, और न्यूक्लियस पर जैसे पॉइंट 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 थंबनेल्स लगा देते हैं, तो ऐसे ऐसे नेल मतलब छोटी छोटी नेल्स की तरह उस पर इलेक्ट्रॉन्स चिपके हुए हैं, दे आर एम्बेडेड इनटू इट, ये बोला था। तो फिर उन्होंने ये कहा कि रदरफोर्ड की थ्योरी तो रदरफोर्ड की थ्योरी रही ही नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से तो ये फेल हो गई। तो ये दो ड्रॉबैक्स थे, और इन दो ड्रॉबैक्स को हमेशा, एक हीरो होता है और एक विलन होता है, तो विलन ने तो ये बताया, फिर एक हीरो निकल के आया नील बोहर, उसने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये बड़ा सीनियर साइंटिस्ट था और इसने इतना रिसर्च करा है, तो इसके रिसर्च का जवाब मैं दूंगा। तो उसका जवाब फिर नील बोहर ने दिया, और नील बोहर ने कहा कि we will give we will give explanation about these theories as well as we will extend this model। उन्होंने उसको एक्सटेंड भी करा। तो अब अगला जो हम मॉडल देखेंगे वो नील बोहर का देखेंगे। तो नील बोहर ने ये जो ड्रॉबैक्स थे, इन ड्रॉबैक्स को दूर करने का तरीका बताया। समझ गए कि नहीं? ड्रॉबैक्स क्या? पहला ड्रॉबैक ये कि लगातार इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो स्टेबल है या नहीं, ये रदरफोर्ड ने नहीं बताया, स्टेबिलिटी का जवाब नहीं दिया, पहली चीज। दूसरी चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये कहती है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन फॉलो कर रहा है तो वो लगातार एनर्जी लूज करता जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स भी तो एक्सेलरेटेड मोशन में है, क्योंकि हर इंस्टेंट पर उनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वो भी एनर्जी लूज करते जाएंगे। और जब वो एनर्जी लूज करते जाएंगे तो अल्टीमेटली ऑल देयर एनर्जी विल गेट लॉस्ट। और जब पूरी एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी उनकी, तो वो शांत पड़े रहेंगे, तो उनको आसानी से जो न्यूक्लियस है वो अपनी तरफ खींच सकता है। और जब न्यूक्लियस अपनी तरफ उनको खींच लेगा, तो इसका मतलब रदरफोर्ड का जो थ्योरी थी, जो रदरफोर्ड का मॉडल था कि इलेक्ट्रॉन्स कीप ऑन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, वो फेल हो गया, क्योंकि फाइनली तो वो आकर उस पर चिपक गए इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए? ठीक। तो अब मैं हेडिंग डाल रहा हूं नेक्स्ट, नील्स बोहर एक्सप्लेन्ड द स्टेबिलिटी ऑफ एटम।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी फिर से समझा दीजिए प्लीज। अभी बता रहा हूँ। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में क्या था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में आप स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि कोई भी अगर चार्ज्ड पार्टिकल है जो एक्सेलरेटेड मोशन में है, एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब जिसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में है तो इसका मतलब क्या है कि वो जो है वो धीरे 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 अपनी एनर्जी लूज करता चला जाएगा, एनर्जी को रेडिएट करता चला जाएगा। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर उस थ्योरी को रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम पर अप्लाई करा जाए तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो कंटिन्यूअसली उनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, उनकी रिवॉल्विंग की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। जब डायरेक्शन चेंज हो रही है इसका मतलब दे आर इन एक्सेलरेटेड मोशन। और एक्सेलरेटेड मोशन में अगर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो अपनी एनर्जी लूज करेंगे। जब एनर्जी लूज करेंगे तो फाइनली उनकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी एंड इलेक्ट्रॉन्स विल कम एट रेस्ट। जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में आ गया तो रदरफोर्ड की तो थ्योरी ही फेल हो गई। रदरफोर्ड की थ्योरी ये कहती थी, उसका सेकंड पोस्टुलेट ये था कि लगातार जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को सच माना जाए और उसको अप्लाई करा जाए रदरफोर्ड मॉडल पर तो रदरफोर्ड मॉडल फाइनली फेल हो गया। समझ गए? यस सर, थैंक यू। ठीक है, अब आगे नोट करें। नील्स बोहर एक्सप्लेन्ड द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। नील्स, अच्छा ये दिखाई नहीं दे रहा होगा। Niels Bohr explained the Niels Bohr explained the stability of atom. नोट करें, the electrons, बल्कि पहले लिखें according to Niels Bohr, according to Niels Bohr, the electrons could revolve around the nucleus, could revolve around the nucleus in only certain orbits orbits, और ब्रैकेट में लिखिए each orbit having a different radius. Each orbit having a different radius. Second, when an electron is revolving in a particular orbit or particular energy level, उसको energy level भी बोल देते हैं। When an electron is revolving in a particular orbit, when an electron is revolving
when an electron is revolving in a particular orbit or particular energy level around the nucleus, energy level around the nucleus, the electron does not radiate energy. The electron does not radiate energy even though it has accelerated motion around the nucleus. Even though it has accelerated motion around the nucleus. इस चीज को उसने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करा. अब इसका एक्सप्लेनेशन किस तरीके से दिया था कल की क्लास में बताता हूँ. आज इतना ही कर लीजिए. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Okay. Bye, sir.